اب ہم نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے تھائرائڈ میلیگنینسی. تھائرائڈ میلیگنینسیز. دیکھیں جی، یہ تھائرائڈ کینسر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ تھائرائڈ کے اندر کون کون سے کینسر ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کینسر ہوتا ہے اس کو ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کا ایک طرح کا پیپلری کارسینوما. ٹھیک ہے، پیپلری کارسینوما کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے دینا ہے ایک کون سا ہوتا ہے پیپلری کارسینوما. پیپلری کارسینوما کے بارے میں آپ کو جو مین بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے نا کہ موسٹ کامن کینسر آف تھائرائڈ کون سا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ پیپلری کارسینوما ہے. ٹھیک ہے، کہ پیپلری کارسینوما جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہوتا ہے. تو آپ نے کہنا موسٹ کامن کینسر. آپ نے کہنا موسٹ کامن کینسر. اگر کسی بندے کو ایک طرح کا فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 پیشنٹ آتے ہیں، 100 پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تھائرائڈ کینسر کا، اس میں سے جو 80 پیشنٹ ہوں گے نا وہ تقریباً پیپلری کارسینوما کے ہوں گے. 20% جو پیشنٹ ہوں گے وہ کسی اور کے ہوں گے. تو آپ نے کہنا تقریباً کتنا ہوتا ہے 80% اس کے ایک طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ ہاں جی جناب اس کے اندر فار ایگزامپل جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایز اے ہسٹولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیں کیا ملتا ہوتا ہے. دیکھو آپ نے کہنا ہے کہ پیپلری کارسینوما سب سے موسٹ کامن کینسر ہے، نمبر 1. اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کینسر ہوتا ہے یہ جناب اس کے اندر ہم ایک طرح کا فار ایگزامپل نیوکلیائی دیکھتے ہوتے ہیں، اور یہ جو نیوکلیائی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرفن اینی نیوکلیائی. آرفن اینی نیوکلیائی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ آپ کا ایک سیل ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا نیوکلیس ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس نیوکلیس کے اندر اس طرح کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اس طرح گروپ بنا ہوا ہے. جب یہ گروپ بنا ہوتا ہے تو بندے کی آنکھ کی طرح کا نہیں بن جاتا، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آنکھ بنی ہو تو یہ بالکل سیم ٹو سیم ویسا سٹرکچر ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں آرفن اینی نیوکلیائی. کیا کہتے ہیں؟ ایک طرح کا آرفن اینی نیوکلیائی. یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے کہ ہاں جی جناب ہسٹولوجیکل پوائنٹ آف ویوز پر ہم کیا دیکھتے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہنا آرفن اینی نیوکلیائی دیکھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ نے یہ بات کرنی ہے. اور دوسرا یہ والا جو کینسر ہے اس سے ڈیتھ کم ہوتی ہے، اس سے ڈیتھ کم ہوتی ہے. اور کوئی بھی ایسا کینسر جس سے ڈیتھ کم ہوتی ہو اس کو ہم لکھتے ہوتے ہیں گڈ پروگنوسس. کیا کہتے ہیں؟ ایک طرح کا گڈ پروگنوسس. ٹھیک ہوگا، گڈ پروگنوسس لکھتے ہوتے ہیں. نمبر لاسٹ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کینسر ہوتا ہے یہ پھیلتا ہے آپ کا لمفیٹکس کے تھرو. کس کے تھرو پھیلتا ہے؟ آپ کے لمفیٹک سسٹم کے تھرو پھیلتا ہے. لمفیٹکس کے تھرو پھیلتا ہے، لمفیٹک سپریڈ ہے. اس کے بعد آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہاں جی جناب اس کے اندر جو موسٹلی بندے کی جو ایج ہوتی ہے یہ ینگ بندوں میں ہوتا ہے. یہ کن میں ہوتا ہے؟ آپ کے ایک طرح کا ینگ بندوں میں ہوتا ہے. ینگ موسٹلی میل. ایج کتنی ہوتی ہے؟ 20 to 40 ایئرس. یہ اتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہاں جی جناب پیپلری کارسینوما جو ہوتا ہے موسٹ کامن کینسر ہے، 80% تقریباً ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر ہم ہسٹولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ آرفن اینی نیوکلیائی دیکھتے ہوتے ہیں. اس کا گڈ پروگنوسس ہے، لمفیٹک سپریڈ ہے، ینگ میل کے اندر ہوتا ہے. بس یہ باتیں آپ نے یاد کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل کوشچن پتہ ہے کیسے آئے گا؟ ایک ینگ بندہ ہے وہ جناب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے، اس کے جناب پہلے کیا تھا؟ ایک طرح کا لمپ تھا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب اس کے ایک طرح کے پوزیشنل ٹریمرز ہیں، اس کو جناب ایک طرح کا پالپیٹیشن ہے، اس کو جناب ایک طرح کی سویٹنگ بہت زیادہ آتی ہے، وہ جناب بہت زیادہ اریٹیبلٹی شو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا ہسٹولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی بایوپسی کی جاتی ہے، اور بایوپسی کے اوپر اس کا کیا آتے ہیں؟ آرفن اینی نیوکلیائی آتے ہیں. تو یہ کون سا کینسر ہے یہ بتائیں؟ شاباش. اگر وہ کہتا ہے آرفن اینی نیوکلیائی آتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ینگ اور آرفن اینی نیوکلیائی. ویری انپورٹنٹ 2 باتیں صرف یاد کرنی ہے. اس کوشچن کے اندر صرف یہ 2 باتیں لکھی ہوتی ہیں جب بھی یہ کوشچن آتا ہوتا ہے، آرفن اینی نیوکلیائی اور ینگ. تو آپ نے کہنا پیپلری کارسینوما. پھر آپ نے جانا ہے کہ یہ پیپلری کارسینوما کا آپ ایک طرح کا مطلب کہ گڈ پروگنوسس ہے یا بیڈ پروگنوسس. آپ نے کہنا یہ گڈ پروگنوسس ہے. پھر یہ پھیلتا کیسے؟ لمفیٹکس کے تھرو پھیلتا ہے. کیسے پھیلتا ہے؟ آپ کا لمفیٹکس کے تھرو پھیلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں فار ایگزامپل ایک طرح کا مطلب کہ فولیکولر کارسینوما کا. فولیکولر کارسینوما کیا ہوتا ہے؟ پیپلری کارسینوما ہمارا ہو گیا، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فولیکولر کارسینوما. دیکھیں جی فولیکولر کارسینوما آپ کا وہ آپ کی باڈی کے اندر 4 طرح کے کارسینوما ہوتے ہیں جو کہ ہیمیٹوجینس سپریڈ ہوتی ہے. میری بات کو غور کر لیجئے گا، یہ انشاءاللہ ہم پیتھو کی بیسک کے اندر بھی ڈسکس
डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना लिख लें कि आपकी बॉडी के अंदर 4 तरह के कार्सिनोमा ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्लड के थ्रू फैलते हैं। बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कार्सिनोमा होते हैं ना, वो सारे के सारे लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते हैं। मेरी बात को गौर किया है? जहां पर वर्ड कार्सिनोमा आ जाए ना, आपने उसका आंसर लगाना है कि ये लिम्फेटिक स्प्रेड है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के जो कैंसर होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का वो कैसे फैलते होते हैं, वो आपने कहना है कि उनकी हिमेटोजेनस स्प्रेड होती है। और फोलिकुलर कार्सिनोमा उनमें एक है जो कि जनाब आपका क्या करवाता होता है, एक तरह का हिमेटोजेनस स्प्रेड करवाएगा। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है, अगर उधर लिम्फेटिक स्प्रेड था, यहाँ पर क्या आएगा? शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें। यहाँ पर क्या आएगा? लिम्फेटिक स्प्रेड। यहाँ पर क्या आएगा? आपने कहना है कि यहाँ पर जो आएगा उसको हमने कहना है हिमेटोजेनस स्प्रेड। क्या कहना है? एक तरह का हिमेटोजेनस, यानी कि ये ब्लड के थ्रू फैलता है। ठीक हो गया? ये थायराइड का वाहद कैंसर होता है जो कि ब्लड के थ्रू फैलता है, बाकी लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि यार एक तरह का इसको आपने ये कहना होता है कि हम ना एक काम करते होते हैं कि फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये फॉर एग्जांपल ना आप समझे कि ये थायराइड है, ये थायराइड के फॉलिकल्स है। ठीक हो गया? ये फॉलिकल्स, एक ऐसा कैंसर होता है उसको हम कहते होते हैं फोलिकुलर एडिनोमा। मेरी बात को गौर कीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का फोलिकुलर एडिनोमा। सर्जरी के अंदर ये कम चीज लिखी होती है लेकिन फिर भी आप गौर कर लें, फोलिकुलर एडिनोमा। फोलिकुलर एडिनोमा वो कैंसर होता है जो कि कैप्सूल को स्प्रेड नहीं, ये इसकी लेयर जो है ना, इसको एक तरह का ये बाहर इससे नहीं जाता, उसको हम कहते हैं फोलिकुलर एडिनोमा। ठीक हो गया? फोलिकुलर कार्सिनोमा ऐसा होता है जो कि लेयर्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया? आपने कहना लेयर्स को भी इन्वॉल्व करता है, ये फैलता है। अब मेरी बात को गौर करो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जनाब एक पेशेंट आता है जिसको जनाब एक तरह का कैंसर है। हमें लगा कि जनाब इसको कैंसर है। ठीक हो गया? अब हमें देख के तो नहीं ना पता लग सकता कि इसको फोलिकुलर एडिनोमा है या कार्सिनोमा है, नहीं ना पता लग सकता। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं, बायोप्सी। ठीक होगा? फाइन नीडल एस्पिरेशन, बायोप्सी करते होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ जी जनाब, फोलिकुलर कार्सिनोमा को आप किससे एक तरह का डिफरेंशिएट करने के लिए बायोप्सी करते हो, तो आपने कहना फोलिकुलर एडिनोमा से। ठीक हो गया? ये अक्सर आपका एमसीक्यू आता है, तो आपने कहना फोलिकुलर एडिनोमा जो होता है इससे जनाब हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते होते हैं? एक तरह का बायोप्सी करते होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होता है एक तरह का कैप्सूल इन्वॉल्व होता है। आपने फोलिकुलर कार्सिनोमा के अंदर लिखना है कैप्सूल इन्वॉल्व, और एडिनोमा के अंदर क्या लिखना है कि कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आपने क्या लिखना है? एक तरह का कैप्सूल इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया? बस ये बातें। और इसके अंदर आगे क्या होता है? आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह का लंग्स और बोन के अंदर फैल सकता है। कहाँ ये फैल सकता है? आपके लंग्स और बोन्स के अंदर ये फैल सकता है। ऐसा यानी कि जिसको थायराइड का कैंसर हो फोलिकल का, ये जनाब आपके लंग्स और बोन के अंदर फैल सकता है। बस ये 2 से 3 बातें। कैंसर थायराइड के ऐसे हैं जिसके अंदर आपने 2 से 3 बातें याद करनी है। किसी भी बुक के अंदर ज्यादा नहीं लिखा हुआ, हर बुक के अंदर 3 से 4 बातें लिखी हुई है। आप जो मर्जी बुक उठा ले। ठीक हो गया? बाकी उन्हीं बातों को रिपीट किया गया और कुछ भी नहीं है। आपने कहना थायराइड कार्सिनोमा की सबसे पहले जो टाइप होती है उसको हम पेपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, तकरीबन 80% होता है। ठीक होगा? उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, मतलब कि इससे बचने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि इसका लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। उसके बाद इसके अंदर हम क्या देखते हैं? ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई देखते हैं। ये एक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना लिम्फेटिक स्प्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया? नंबर 2। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, नंबर 3 पे क्या होता है? यंग एज को याद कर लें, गुड है। और उसके बाद गुड प्रोग्नोसिस। ठीक, और मोस्ट कॉमन। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। फोलिकुलर कार्सिनोमा का आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसको किससे डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो आपने कहना है फोलिकुलर एडिनोमा से। किससे डिस्टिंग्विश किया जाता है? फोलिकुलर एडिनोमा से। ठीक हो गया? तो हिमेटोजेनस ये स्प्रेड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कौन सा आपका थायराइड का स्प्रेड जो हिमेटोजेनस स्प्रेड होता है? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, फोलिकुलर कार्सिनोमा। उसके बाद फाइनल रेस्पिरेशन बायोप्सी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? फोलिकुलर एडिनोमा से डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं, ताकि उस जैसा ना हो, हम उसको सेपरेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? पूरे का पूरा कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, लेकिन एडिनोमा के अंदर कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया? और ये कहाँ कहाँ फैल सकता है? लंग्स और बोन्स के अंदर फैल सकता है। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब, आपका कैंसर कौन सा है। ठीक है? नेक्स्ट आपका जो कैंसर होता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। बल्कि मेडुलरी कार्सिनोमा एक बार कर लें, उसके बाद हम एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की तरफ आते हैं। ठीक है? मेडुलरी कार्सिनोमा करते हैं। इसके बाद आपका
थायराइड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो आपका मजे वाले टॉपिक्स हैं, वो भी हो जाएंगे। मुझे पता है कैंसर जो होते हैं ना वो याद करने भी थोड़े से मुश्किल से होते हैं, याद करना भी थोड़ी सी खुशक से होते हैं, लेकिन जो 5 याद रखने हैं वो तो आप करना ही करनी है, ठीक हो गया। देखो मेरी बात को गौर करना है, ये वाहद ऐसा कैंसर होता है जो कि जनाब आपके कालसीटोनिन की प्रोडक्शन करवाता है। किसकी प्रोडक्शन करवाता है? आपका कालसीटोनिन की प्रोडक्शन करवाता है, कालसीटोनिन की प्रोडक्शन करवाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, ठीक हो गया, कि हाँ जी जनाब मेडुलरी कार्सिनोमा का क्या काम है, आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या काम करता होता है, ये जनाब आपके एक तरह के कालसीटोनिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, कालसीटोनिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक हो गया। अब देखें कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर होता क्या है, ठीक है जी। इसके अंदर ये होता है कि आपके मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है पैराफोलिकुलर सेल्स के अंदर, ठीक हो जाता है। पैराफोलिकुलर जो सेल्स होते हैं ना, जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स, और वो सेल होते हैं उनको कहा जाता है सी सेल। पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक तरह का सी सेल। सी सेल से काल्सिटोनिन बहुत ज्यादा पैदा होता है, सी सेल से काल्सिटोनिन बहुत ज्यादा पैदा होता है, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करने, काल्सिटोनिन का पता है क्या काम होता है? काल्सिटोनिन का काम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल या आपके ब्लड है ना, ये ब्लड है, ठीक होगा, इस ब्लड के अंदर कैल्शियम है, ये कैल्शियम है। काल्सिटोनिन का ये काम होता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करती है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करती है और ये दूर लेकर जाती है। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी ट्यूमर बन जाती है, ठीक हो गया, अगर इसकी ट्यूमर बन जाती है तो फिर तो एक तरह का कैल्शियम जो होगा वो तो हमारी ब्लड के अंदर काम नहीं हो जाएगा? पहले मुझे ये बताएं, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल इसकी ट्यूमर बन जाती है तो फिर तो काम नहीं होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने ये कहना है, ठीक है, आपने ये कहना है कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तरह का हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है, ठीक हो गया। नंबर 1, हाइपोकाल्सीमिया की वजह से आपको एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं टेटनी। क्या कहते हैं? एक तरह का टेटनी, ये लिख लीजिए, ठीक हो गया। टेटनस नहीं कहते, टेटनी कहते होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने एक और याद रखनी है कि जब ये काल्सिटोनिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता है ना, काल्सिटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ओके ओके मैं करता हूँ। ये काल्सिटोनिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ता है ना, तो काल्सिटोनिन का होता है ये हमारे नॉर्मल टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी प्रोटीन या काल्सिटोनिन आपके नॉर्मल टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए ना, इसको हम कहते हैं एज अ एमालॉइड। क्या कहते हैं? एक तरह का एमालॉइड प्रोटीन, एमालॉइड प्रोटीन के तौर पर। अब मैं इस बात को पूरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपका एक तरह का मेडुलरी कार्सिनोमा था। मेडुलरी कार्सिनोमा का काम क्या होता है कि इसके अंदर एक तरह के पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम सी सेल्स कहते हैं। इसके अंदर से क्या रिलीज होता है? काल्सिटोनिन रिलीज होता है। अब देखें काल्सिटोनिन का काम क्या होता है? काल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना, ठीक हो गया। और ये काल्सिटोनिन किधर से रिलीज हो रहा है? पैराफोलिकुलर सेल सी से। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल लॉजिक समझते रहे, अगर किसी बंदे को पैराफोलिकुलर सेल सी का कैंसर हुआ, ये बहुत ज्यादा रिलीज होगा। जब ये बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो इसकी वजह से काल्सिटोनिन भी बहुत ज्यादा रिलीज होगा। जब काल्सिटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो भी बहुत ज्यादा बाहर जाएगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा बाहर जाएगा तो इसकी वजह से हाइपोकाल्सीमिया हो जाएगा, और हाइपोकाल्सीमिया की वजह से टेटनी हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद काल्सिटोनिन क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो ये काल्सिटोनिन आपके नॉर्मल टिश्यू के अंदर भी डिपॉजिट होता जाएगा। जब ये नॉर्मल टिश्यू के अंदर भी डिपॉजिट होता जाएगा तो इसको हम एज एमाइलॉइड कहते हैं। हाँ जी, आपको ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आए, शाबाश। इसको हम क्या कहते हैं? एज एमाइलॉइड कहते होते हैं, ठीक है। ओके गुड हो गया जी। उसके बाद आपने मतलब कि जैसा आप ये पता चल गया, इसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक तरह का ये जो होता है ये एसोसिएट कर होता है एक तरह का मैन 2A, ठीक हो गया, मैन 2A और मैन 2B, ठीक हो गया। और उसके बाद रेट ऑन्कोजीन म्यूटेशन लिखी हुई, किन किन जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकती है इसके अंदर? मैन 2A, मैन 2B, इसको हम याद करेंगे एंडो के अंदर, मैन 2A, मैन 2B। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? एक तरह का रेट जीन। इनके अंदर क्या हो जाती है? एक तरह की म्यूटेशन हो जाती है। तो तब क्या होता है? एक तरह का ये पैराफोलिकुलर सी सेल का कार्सिनोमा होता है। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ, शाबाश मुझे बताते जाइए, क्योंकि कैंसर है, रट्टा है थोड़ा बहुत, मेन पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज लाजमी इसमें से एक आधा आ जाता है, लाजमी आ जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर है? शाबाश ये बताइएगा जी। रेट जीन, रेट। अच्छा अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि
वो ऐसा कौन सा कैंसर है जिसके से बचने के से जिससे बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? शाबाश। अब मुझे ये बताएं कि पेपिलरी कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड होता है? पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो स्प्रेड कैसे होता है? अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि हाँ जी जनाब, जो आप लोगों का फॉर एग्जांपल जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, इसके अंदर मतलब कि जो आप लोगों का एक तरह का मेन जो एक्टिवेशन पॉइंट, उसके अंदर हम बायोप्सी के अंदर क्या देखते हैं? बायोप्सी के अंदर जल्दी करें शाबाश। बायोप्सी के अंदर हम क्या देखते होते हैं? ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। उसके बाद देखो कि फॉर एग्जांपल आ जाता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। फॉलिकुलर कार्सिनोमा आपका कैसे स्प्रेड कैसे होता है? उसके बाद इसको हम किससे डिफरेंशिएट करते हैं? और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, बस ये मेन ही है, ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाते हैं हम किसकी तरफ, एक तरह का मतलब के मेडुलरी कार्सिनोमा। ऐसा कोई कैंसर जिसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता हो ब्लड के अंदर, वो कौन सा है? ऐसा कोई लेवल जिसके अंदर कार्सिटोनिन एमालॉइड बनती हो, वो कौन सा है? ऐसा कोई कैंसर जिसमें पैराफोलिकुलर सी सेल्स इन्वॉल्व हो, वो कौन सा है? मेडुलरी कैंसर। ऐसा कोई कैंसर जिसमें जनाब मैन 2A मैन 2B और उसके बाद रेट जीन की म्यूटेशन हुई हो, वो कौन सा है? सिंपल सी बात है, मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट, और वो कौन सा होता है आपका एक तरह का मतलब के एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये आपका लास्ट है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। देखें जी, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ये वाहद कैंसर है जो सबसे कम होता है और ये सबसे गंदा होता है, ठीक हो गया। आपने कहना है कि ये कैंसर कौन सा होता है? ये सबसे कम होता है, नंबर 1, ठीक हो गया। और ये क्या होता है? ये सबसे गंदा होने का मतलब ये होता है कि ये एक तरह की डेथ करवाता है, ठीक हो गया। इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं इसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट कार्सिनोमा। इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बिल्कुल शाबाश, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। आपने कहना पुअर प्रोग्नोसिस होता है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के अंदर जो होता है, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर ये कहता है मतलब कि आपने ये कहना है कि इसके जो होने के चांसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं, इसके जो चांसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये मोस्टली आपका लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलता है। उसके बाद आपने बताना ये ओल्ड एज के अंदर होता है। किन के अंदर? ओल्ड एज के अंदर। एमसीक्यूज ये आता है अक्सर, एमसीक्यूज के अंदर ये ओल्ड एज लाजमी मेंशन की जाती है। 70 इयर्स ओल्ड, 80 इयर्स ओल्ड, 60 इयर्स ओल्ड, ठीक होगा, ये लाजमी मेंशन की जाती है। उसके बाद इसके अंदर आपने और चीजें लिखनी है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी, ठीक हो गया। ये कभी कभी ये वाहद कैंसर है आपके कैंसर में से, थायराइड कैंसर में से ये अकेला वाहद कैंसर होता है जो कि लोकल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता होता है। कैसे ये लोकल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा? अब मुझे आप लोगों ने बताना, जब लोकल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा तो वहां पर लोकल स्ट्रक्चर कौन से हैं? वो भाईजान है, एसोफेगस है कि नहीं है ना एसोफेगस। आपने कहना वहां पर क्या एक तरह किया है, एसोफेगस है। जब ये एसोफेगस को इन्वॉल्व करेगा तो खाना सही तरह खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। जब खाना सही तरह नहीं खाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डिस्फेजिया हो जाएगा। उसके बाद वहां पर ट्रैकिया है, सांस की नाली, ठीक हो गया। तो जब सांस की नाली डिस्टर्ब होगी तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का क्या होगा, एक तरह का आपने ये कह देना है कि उसकी वजह से आपके एक तरह का मतलब डिस्फेजिया के साथ आपको एक तरह का डिसनिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद और थोपड़ियां होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हम किस में देते हैं? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के अंदर हम देखते होते हैं। तो ये था आपका एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, और ये सारे के सारे आपके थायराइड के कैंसर थे। कोई ऐसा बच्चा जिसका किसी